And now, shifting focus, the Waqf Amendment Bill is all set for discussion in the Parliament today, with the government allocating 8 hours for debate. The bill, revised after a joint parliamentary committee review, will be presented by Minorities Affairs Minister Kiren Rijiju. The opposition had demanded 12 hours for discussion, but the government limited it to 8, citing the scheduled debate on a statutory resolution against the imposition of central rule in Manipur. Now, this led to a heated exchange culminating in an opposition walkout. BJP has issued whips for its MPs in Lok Sabha today and in Rajya Sabha on April 3rd. Congress too has issued a 3-line whip to its MPs in Lok Sabha. As per sources, key changes in the bill include increasing non-Muslim representation in the Waqf board, requiring proof of 5 years of Islamic practice for property donations, increase in number of members in the tribunal, and shifting property oversight from the collector to a state-appointed official. हर अच्छे कार्य का विरोध होता है। ऐसे ही वक्फ संशोधन विधेयक पर भी ये हो हल्ला हो रहा है। जो हो हल्ला कर रहे हैं, इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कोई ऐसा काम वक्फ बोर्ड के माध्यम से किया हो जो वेलफेयर का हो। छोड़िए, सब समाज की बात छोड़िए, मुस्लिम समाज का ही कोई कल्याण किया हो उस प्रॉपर्टी का। ये व्यक्तिगत स्वार्थ का ये अड्डे बने हुए हैं। किसी भी सरकारी प्रॉपर्टी पर जबरन काबिज करने का एक माध्यम बना हुआ है और रिफॉर्म इस समय की मांग है। और मुझे लगता है कि इसका लाभ मुस्लिम समाज को भी होगा और जिसके कारण बहुत बार कानून व्यवस्था के संकट खड़ा होता है, उससे भी लोगों को मुक्ति मिलेगी। ये बिल एंटी मुस्लिम नहीं है, अपोजिशन एंटी मुस्लिम है। इनको मुसलमानों का फायदा करने की इनकी भूमिका बिल्कुल नहीं है। हमेशा हुटिंग के लिए उनको भड़काने का काम करते रहते हैं, एनडीए पर आरोप करते हैं, लेकिन एनडीए और माननीय मोदी जी की सरकार जो है, ये तमाम मुसलमानों के फायदे के लिए ये बिल लाया गया है और अपोजिशन वाले ही मुसलमान के विरोध में है, ऐसा उनके ऊपर मेरा आरोप है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि जिसने नारा दिया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, आखिर उनके साथ जो अल्पसंख्यक है वो उन पे भरोसा क्यों नहीं करता है? और क्या अच्छे काम है भारतीय जनता पार्टी सरकार की? ये कि देश की सबसे बड़ी अदालत कहे कि जो अतिक्रमण के नाम पे बुलडोजर चल रहा है वो रुकना चाहिए, और वो बुलडोजर रुकने का नाम नहीं लेता है, वो अल्पसंख्यकों के घरों पे चलता है। ये अच्छे काम है क्या भारतीय जनता पार्टी के? भारतीय जनता पार्टी के क्या ये अच्छे काम है कि वो वक्फ संशोधन बिल लेके आ रहा है, लेकिन उनकी नीयत क्या है कि वो उस संपत्ति को उद्योगपतियों को देना चाहते हैं? ये उनके अच्छे काम है। भारतीय जनता पार्टी बताए कि जो वादे 2014 में, 17 में, 19 में, 22 में भाजपा ने किए थे, उन वादों का, उन सपनों का क्या हुआ? The Waqf Amendment Bill 2024, introduced in the Lok Sabha, has caused nationwide protests, particularly from the All India Muslim Personal Law Board, who argue that it undermines the constitution and targets Muslims. The bill proposes amendments to the Waqf Act 1995, addressing issues in regulating Waqf properties. Key proposals include representation for Muslim women and non-Muslims in Waqf boards, as well as the establishment of separate boards for Bohras and Aga Khanis. Despite opposition, the government plans to push the bill through Parliament. The Centre and the All India Muslim Personal Law Board, or AIMPLB, are at odds over the Waqf Amendment Bill 2024, introduced in the Lok Sabha in August and later referred to a joint parliamentary committee after heated debate. Aimed at regulating Waqf board operations and property management, the bill has sparked nationwide protests, with the AIMPLB calling it an attack on the constitution and a move targeting Muslims. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तमाम मुसलमानों से अपील की थी कि आज जुमे की नमाज के जाते वक्त अपने राइट हैंड पे काली पट्टी बांध करके एक साइलेंट और पीसफुल प्रोटेस्ट प्रपोज वक्फ अमेंडमेंट बिल के ख़िलाफ़ दर्ज कराएं, क्योंकि हम लोग का यह मानना है कि ये बिल औक़ाफ़ के इंटरेस्ट में नहीं है बल्कि उसके ख़िलाफ़ है और वक्फ मुसलमानों का अपना एक मजहबी मामला है, लिहाजा उसमें किसी किस्म का इंटरफेरेंस
काबिल कबूल नहीं है। आपने देखा कि तमाम मुसलमानों ने उस पर पूरी तरीके से अमल किया। इसका मकसद ये है कि हम लोगों की आवाज़ और इसकी गूंज पार्लियामेंट तक पहुँचे और पार्लियामेंट से इस बिल को पास ना कराया जाए। The Tamil Nadu Assembly passed a resolution urging the centre to withdraw the Waqf Amendment Bill 2024, arguing it would strip Muslims of their land, assets and religious rights under Article 26 of the Constitution. The bill aims to amend the Waqf Act 1995 to address issues in regulating and managing Waqf properties. देखिए, वक्फ के तहत जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोटेक्टेड हैं। वक्फ में जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो वक्फ से मुतालिक जो कानून है शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 जिसको हमारे कानून ने, हमारे संविधान ने मान्यता दी है। Waqf, a key aspect of Islamic law, designates properties for religious or charitable use and is managed by a mutawalli who oversees and administers these properties with irrevocable ownership. As per the Press Information Bureau, Waqf boards oversee 8.7 lakh properties across 9.4 lakh acres in India, valued at 1.2 lakh crore rupees. The bill proposes omitting Section 40 of the Waqf Act, which grants boards the authority to determine Waqf property status. हमें तो जिम्मेदारी मिली है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्फ की, उसकी रिपोर्ट हम तैयार कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि सभी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उनकी सहमति से एक अच्छी रिपोर्ट हम प्रस्तुत करें, जिससे कि जो वक्फ का एक पर्पज है, उद्देश्य है, जो वाकिफ करता है कि उसका फ़ायदा गरीबों को मिले, आम मुसलमानों को मिले, पसमानदा को मिले, ख़वातीन को मिले, महिलाओं को मिले, तो उस पर उसका फ़ायदा मिले। एक ट्रांसपेरेंट बिल आए जिससे कि जो सरकार की मंशा है कि वक्फ का पर्पज पूरा हो। The bill proposes Muslim women and non-Muslim representation in the Waqf boards and a separate board for Bohras and Agha Khanis. It grants district collectors authority over Waqf property disputes and introduces 40 amendments to limit Waqf board powers, affecting 32 boards managing over 8.7 lakh immovable and 16,000 movable properties nationwide. देखिए, जो 1995 का वक्फ एक्ट था उसमें कुल 44 अमेंडमेंट किया जा रहा है, 44 बदलाव किए जा रहे हैं। वोहरा और आगा खानी मुस्लिम्स को भी अब मान्यता दे दी गई है। वक्फ को अनिवार्य रूप से घोषित करना अनिवार्य कर दिया गया है, यानी अगर आप प्रॉपर्टी वक्फ डिक्लेयर कर रहे हैं तो बाकायदा उसको लिखित में स्टैम्प पेपर पर डिक्लेयर करना होगा, गवाहों के सामने होगा। तो वक्फ प्रॉपर्टी कब हुई है, कब वो दान की गई है, उस किसने दान किया है, कब दान किया है, किसके सामने दान किया है, इसका प्रॉपरली जो है लिखित इसका दस्तावेज बनेगा। महिलाओं को भी अब इस पे पूरा उनको अधिकार मिल गया है। पहले क्या हो रहा था, बाय द वे, किसी महिला को बच्चा नहीं है तो अपनी ज़मीन अपने भतीजे को, भांजे को, बहन के बच्चे को नहीं दे पा रही थी, वो प्रॉपर्टी वक्फ में जा रही थी। अब बिना महिला की सहमति के आप प्रॉपर्टी नहीं ले सकते हैं, उसको वक्फ डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, उसमें महिला की सहमति ज़रूरी है। The Waqf Amendment Bill has intensified the long-standing dispute between the Union government and the AIMPLB-backed opposition parties, as Home Minister Amit Shah firmly reiterated plans to reintroduce the bill in the current parliamentary session on Friday. And with that, we're now slipping into a very short break. We'll be right back with